Hello students, welcome back. Welcome to Pebbles CBSE. We had started with first lesson chemical reactions and equations. And we had seen what is a chemical change, how is it different from physical change. And I showed you the examples of magnesium ribbon burning in air and another example where a metal reacts with an acid. Now what changes we saw? That a chemical change will have some different types of changes which we can observe, like the color can change, the state can change, the gas can be evolved, or heat can be absorbed or evolved. So this is what we had done in the last video. Now we will see what is a chemical equation. Now when I said if I burn magnesium ribbon in air, can I write the whole sentence every time? It is very difficult. So what to do? We can make use of equation. Now equation means here we are writing in the short form. We will not write the whole sentence, but we will write in the short form. Like if I say magnesium ribbon, now magnesium is a metal. So I can write word magnesium. It reacts with oxygen. Now how will I show reacts with? I don't have to use the words. I can write plus sign there. And it reacts with what? Oxygen. So I can write oxygen. So if I say the chemical equation is a way of showing what type of chemical reaction takes place. Let me show you. So example which I had given, we can say magnesium. I am writing the word equation. Magnesium reacts with, now these are the words which can be shown with the help of plus sign. So magnesium reacts with oxygen to form, to give. When I want to write to form or to give, I can use an arrow pointing towards the right side. So what is the formation? What thing is formed? So magnesium, when it reacts with oxygen, it forms magnesium oxide. This is a word equation. So what is a word equation? The equation which represents the chemical reaction. So here we have used the words in English. So we have written the whole words magnesium plus shows that it reacts with oxygen forming magnesium oxide. Now there are some rules to follow in the chemical equation. When we write chemical equations, which rules should be followed? Or what are the things we should know? The names, what are the names or the scientific words which we are using? Now if I say two things are reacting with each other, so the things which are reacting with each other are called as reactants. The things which are reacting with each other are called as reactants. And these reactants are always written on the left hand side of this arrow. Now on the left hand side of this arrow, always the reactants is written. Left hand side of the arrow, the reactants are written. This arrow shows that the reaction has taken place and it is pointing towards right side, showing that reactants have reacted and then form a substance. The substance which is formed after this reaction is called as product. Now this is called as product. And where is product written? Product is always written on the right hand side of this arrow. Now this is very important. A chemical equation, when we have to represent any chemical reaction in the form of an equation, we can use the words in English, that is called as word equation. मैंने यहाँ पर कोई सिंबल या फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए. सो जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैग्नीशियम पूरा वर्ड लिखा, प्लस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि कौन सी चीज़ें कैसे रिएक्ट हो रही हैं. सो मैं जब बोलती हूँ मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, सो इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. तो इज रिएक्टिंग विथ हम कैसे दिखा सकते हैं? हम दिखा सकते हैं प्लस साइन.
और प्लस क्या दिखाता है कि ये दोनों चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद हमें एरो बनाते हैं। ये एरो क्या दिखाता है, और एरो हमेशा राइट साइड में पॉइंट करता है। तो राइट साइड में पॉइंट इसलिए करता है क्योंकि जो लेफ्ट साइड के जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस बन रहा है वो राइट साइड में लिखा जा रहा है। सो इसलिए हम इसको वर्ड इक्वेशन जैसे बोलते हैं। अब जब वर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं तो इसमें भी कुछ रूल्स तो होंगे, कैसे लिखना है, कहाँ पर क्या लिखना है। तो हम जब लिखते हैं तो ये जो पहली चीज़ें जो इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी जाती हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई विच आर द रिएक्टेंट्स एंड विच आर द प्रोडक्ट्स। आपको आइडेंटिफाई करना है या आपको पहचानना है कि जो रिएक्शन दिया गया एग्जाम में उसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। जो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो बना है, रिएक्शन के बाद जो नया चीज़ बना है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये याद रखिए, हमेशा रिएक्टेंट्स और ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में या बाएं साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं। किसके बाएं साइड में, इस एरो के बाएं साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, एरो के राइट साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट मीन्स जो बना है। अब ये हो गया रूल्स, पर हमेशा हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर वर्ड्स की जगह पे हम सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। उन सिंबल्स को यूज़ करके फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं, और फिर हम ये इक्वेशन जो वर्ड इक्वेशन है उसको हम छोटा करके वर्ड इक्वेशन की जगह हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें हमने फॉर्मूलाज यूज़ किया है और सिंबल्स यूज़ किए हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हर एक एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया है। जैसे सोडियम को Na दिया गया है, पोटेशियम को K दिया गया है, एल्यूमिनियम को Al दिया गया है, मैग्नीशियम को Mg दिया गया है, जिंक को Zn दिया गया है, ऑक्सीजन को O दिया है, नाइट्रोजन को N दिया है। ये हो गए सिंबल्स की बात। तो मैं बोलूँ फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो चीज़ होती है कि एक एटम में और या एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सिंबल क्या है। तो ऑक्सीजन का सिंबल है O। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वो होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटम्स होते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन को हमेशा O2 ऐसे लिखते हैं। ये जो 2 नंबर है ये नंबर ऑफ एटम्स दिखाता है। सो क्या मैं इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में फॉर्मूला और सिंबल्स यूज कर सकती हूँ, फिर मैं लिख सकती हूँ? जरूर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है, सिंबल है Mg, फॉर्मूला भी Mg ही है। सो M and G, ये याद रखिए। फॉर्मूला पहला लेटर जो होता है, पहला अल्फाबेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और दूसरा जो होता है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। अब मैग्नीशियम, अब यहाँ लिखा है प्लस तो मैंने लिखा प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैंने आपको बताया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 2 एटम्स। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2, तो मैंने यहाँ लिख दिया O2। ओके, फिर मैंने एक एरो बनाया, ये जो एरो यहाँ बना था वो एरो बनाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूलाज मैंने यूज करके बनाए हैं, इसको हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन। लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, क्या आप पहचान सकते हैं? नहीं। सो यहाँ पर कमी ऐसी है कि मैंने यहाँ पर बैलेंस नहीं किया है कोई भी इक्वेशन को। बैलेंस करना मतलब क्या होता है? अब 9th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा था कि जो कोई भी रिएक्शन हो, द मास इज नेवर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। ये मास, ये लॉ का क्या मतलब था आपको याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो एक लॉ है, इस लॉ के हिसाब से अगर आप मैं कहूँ कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें कोई नंबर ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज। जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे
उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड में भी होने चाहिए। एटम का जो मास होता है वो भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो भी हम नया नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें बदलती नहीं हैं। एक तो मास नहीं बदलता, मास मीन्स वजन। पहले लेफ्ट हैंड साइड के जो मास हैं वो नहीं बदलेंगे एंड राइट हैंड साइड को जो मास है वो नहीं बदलेगा। मास मतलब वजन। अगर वजन दोनों मिला के एक तरफ का 10 ग्राम होगा तो दूसरे तरफ का भी 10 ग्राम ही होगा। सो दैट कम्स अंडर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और चीज नहीं बदलती है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए। सो ये मैं कह सकती हूं कि व्हेन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन वी हैव टू कीप इन माइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। जो नंबर एटम के नंबर हैं, जितना नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड है उतना ही होने चाहिए राइट साइड में भी। तो जब मैं उनको वो इस्तेमाल करूंगी, वो मेथड इस्तेमाल करूंगी, तब मैं कहूंगी कि आई एम बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब तक मैं बैलेंस नहीं कर रही हूं तब तक ये इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल वर्ड कहां से आया है, स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, हड्डियों का ढांचा। अब हमारे शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, लेकिन हमारे शरीर में कोई मांस नहीं है या मसल्स नहीं है, कोई स्किन नहीं है, तो क्या हम सही जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है, हमारे जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, सपोर्ट है, वो हमारे बोन्स से आ रहा है। तो वो बोन्स जब बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्केलेटल बन गया। तो यहीं वही कंपैरिजन किया गया है। जब हमने केमिकल रिएक्शन लिखा है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हमने फॉर्मूलाज और सिंबल्स तो यूज कर लिए, हमने प्रोडक्ट का नाम भी लिख दिया, लेकिन हमने बैलेंस नहीं किया। सो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस क्या होता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो जो दुकान वाला होता है वो तौलता है सब्जी। आप आधा किलो सब्जी लेते हैं तो क्या करता है, वो एक तरफ आधा किलो का बाटा रखता है और दूसरी तरफ उतनी ही सब्जी रखता है। जब कांटा पूरा बीच में आ जाएगा इसका मतलब इक्वल है, तो वो उसको कहते हैं वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बैलेंस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड को बैलेंस कर रहे हैं। अगर यहाँ नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 ही होने चाहिए। अब जब मैं 4 की भाषा यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ अलग अलग एलिमेंट्स का यूज कर रही हूँ, ये नहीं कि सब टोटल मिला के इतने होने चाहिए। मैग्नीशियम का अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, अगर यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 होने चाहिए। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड should remain same as the number of atoms on the right side of each element। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। जो अगला पार्ट है मैं आपको सिखाने जा रही हूं उसको कहते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन।